وہ زبان نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بیچ میں جو مثالیں دی جا رہی تھیں قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر خطاب کرنے کی، اصلاح معاشرہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے۔ جیسے کہ ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہو اور اس کا علاج کرنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شوگر کا بھی مریض ہے، بی پی بھی ہے، کڈنی کی بھی پریشانی ہے، لیور بھی خراب ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن زخمی ہے، زخم بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے اٹھے۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن زخمی ہے، دل درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے اٹھے۔ تو کہاں سے گفتگو شروع کی جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد اسی نقطے کا انتخاب کیا ہے جس نقطے کو لے کر کے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے حقوق اگر کسی دوسرے کو دے دیا جائے تو یہ طاغوت ہے۔ اور میں اس اہم موضوع کی حساسیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ توحید ہی اصل ہے۔ ہم کتنا بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی روزہ رکھ لیں، کتنا بھی صدقہ خیرات کر لیں، کتنا بھی حج اور عمرہ کر لیں، کتنا بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کتنا ہی نیکیاں کر لیں، لیکن اگر ہمارا توحید مضبوط نہیں ہے تو جنت نہیں ملے گی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو عبادتیں بہت کرتے ہیں، فرائض کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ ہر مہینے ایام 20 کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ کچھ حضرات اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ان اعمال کا انکار نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر توحید کے ساتھ یہ اعمال ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گے، اور اگر اعمال توحید کے بغیر ہیں تو قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نیکیاں کتنی بھی ہوں فیصلہ توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ نیکیاں کم ہوں لیکن توحید پر ہو، شرک سے پاک ہو، تو وہ نیکیاں انسان کو جنت تک پہنچائیں گی۔ میرے بھائیوں، تمام جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، تمام جماعتیں محنت کر رہی ہیں، لیکن ہمارا جو نقطہ ہے مسلک اہل حدیث کا، ہماری ساری کوشش پہلی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ معاشرے میں جو شرک کے مظاہر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان شرک کی گندگیوں سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور یہی انسانیت کی فلاح و بہبودی کا مقصد ہے کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف جوڑا جائے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف لایا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم شرک سے بچائیں۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہمارے درمیان رائج ہیں۔
وہ تمام حقوق جو اللہ کو دیے جانے چاہیے اللہ کے کسی بندے کو دے دیا جائے، کسی مخلوق کو دے دیا جائے تو وہ شرک ہے۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، انشاء اللہ وشئت۔ میری بات غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے۔ صحابی نے کیا کہا؟ انشاء اللہ وشئت، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ قل انشاء اللہ وحدہ، کہو اگر اللہ اکیلا چاہے۔ انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کتنا کچھ چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کے موقع پر آپ کے پاس گئے، آپ کے کان میں کہا، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے یہاں حجت قائم کروں۔ دو شیطان بیٹھے ہوئے تھے جو ابو طالب کے کان میں پھونک رہے تھے کہ ابو طالب کا مرتے ہوئے بے دین ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے باوجود بھی ابو طالب کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا اور حالت کفر میں انتقال کر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ چچا جس نے ہر کٹھن نوٹ پر آپ کا ساتھ دیا تھا، جس نے کہا تھا بھتیجے سے کہ جاؤ بیٹا جاؤ، تم اپنا کام کرو، جب تک یہ تمہارا بوڑھا چچا ہے، بوڑھے چچا کے ہوتے ہوئے عرب کے لوگ تمہارا بال نہیں باقا کر سکتے ہیں، یہ وہ چچا تھے۔ جب ایمان نہیں لائے تو نبی کو تکلیف ہوئی، اضطراب ہوا، قلق ہوا، آپ بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ میرے بھائیوں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول چاہے، نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ ہماری اصلاح معاشرہ کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ اسی طریقے سے عبادات کا مسئلہ ہو تو عبادات میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان جب بات آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن عبادتوں میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو پابندی نہیں کرتے ہیں، خشوع خضوع کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کا جب حساب و کتاب لے گا تو سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز کے معاملے میں کامیاب ہوا تو باقی اعمال بھی صحیح اور درست مانے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں ناکام ہوا تو باقی اعمال بھی ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، توحید کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے انہی نکات کو یہاں منتخب کیا ہے۔ توحید کے بعد میں نے نماز کا ذکر کیا۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ عمر ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب جی میں آیا نماز پڑھ لیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کی پابندی کرتے تھے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا یہ سب سے اچھا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی۔ بہت ساری خواتین بہانہ بنا کر کے نماز نہیں پڑھتی ہیں، بچہ چھوٹا ہے، گندا کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ نہیں، یہ سب بہانے نہیں چلیں گے۔ اماں حضرت
ताला अन्हा की सीरत पढ़िए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बेटी हैं और जन्नत की औरतों की सरदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरसूम मौत कभी 3 दिन पहले मैंने बुखारी के दर्स में ये हदीस बयान की। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की खिदमत में आई और आपने कुछ बात कही तो वो रोने लगी, फिर आपने फिर एक बात कही तो वो हंसने लगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया कि ऐ फातिमा वो कौन सी बात थी जब नबी ने तुम्हारे कान में कहा तो आप हंसने रोने लगी और फिर दोबारा कहा तो हंसने लगी। कहा ये राज की बात है जो मैं नहीं बता सकती हूँ। जब नबी का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फातिमा से कहती हैं, ऐ फातिमा मैं उन एहसानात का वास्ता लेकर के पूछती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं, बताओ वो राज कौन सी थी कि तुम हंसने लगी थी, तुम रोने लगी थी। हज़रत फातिमा कहती हैं, पहली बात जो मैंने रोने लगी थी, मेरे अब्बू ने मेरे कान में कहा, मेरी बेटी अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। मैंने अपने वालिद की जुदाई को जब सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। और दोबारा जब मेरे कान में आपने बात कही तो आपने ये कहा, ऐ मेरी बेटी क्या तुझे ये बात पसंद नहीं है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार हो? तो मैं हंसने लगी। मेरे भाइयों, ये वो फातिमा है जिन्हें प्यारे नबी ने जन्नत की औरतों का सरदार कहा है। सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, ये जन्नती औरतों की सरदार हैं। लेकिन अमल देखिए, आप एक हाथ से चक्की पीस रही हैं, दूसरे हाथ से हज़रत हसन और हुसैन का झूला झुला रही हैं और जुबान से अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। कहाँ गई वो ख़वातीन? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम इस्लाम के उसूलों पर अमल करेंगे, जब हमारे रगों में इस्लामी खून दौड़ेगा, हमारी कोख से पैदा होने वाली औलाद नेक और सालेह होगी। और जब हमारी माएँ बेनमाजी हो जाएंगी, हमारी माएँ जब दीन से दूर हो जाएंगी तो उनकी गोद से चोर और उचक्के पैदा होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्ली अफजाइश हो और हमारे मुआशरे में नेक लोग पैदा हो तो हमारी माओं को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अक़ाइद और इबादत के मामले में हमें बहुत हसास होना चाहिए। तीसरा मामला जो हमारे सामने है, जो मैंने मुनासिब समझा, जिसकी इस्लाह की जरूरत है, मुआमिलात। आज मुसलमानों के मुआमिलात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। कोई मुसलमानों से अपना मामला नहीं करना चाहता, कोई इनसे तिजारत नहीं करना चाहता, कोई इनसे लेन देन नहीं करना चाहता। हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, हम बेवफाई करते हैं, हम वक्त पर किसी का पैसा नहीं देते हैं। ये हमारी पहचान है। मेरे भाइयों, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान कभी धोखा नहीं देता है, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता है। अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हम धोखा देंगे, हम वादा खिलाफी करेंगे, मेरे भाइयों हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हम नहीं बदनाम होंगे। हमारी इन गलत हरकतों की वजह से हमारा इस्लाम बदनाम होता है, हमारा मजहब बदनाम होता है। लोग कहते हैं मुसलमान ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं इस्लाम ने इनको यही सिखाया है। मेरे भाइयों, अपने मामलात को दुरुस्त करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाजार में गए, देखा कि गल्ले का ढेर लगा हुआ है। आपने अपना हाथ अंदर डाला, देखा कि अंदर जो गल्ला है वो भीगा हुआ है, ऊपर जो गल्ला है सूखा हुआ है। हुजूर ने गीला गल्ला बाहर निकाला, ताजिर को बुलाया, कहा मामला क्या है? मैंने देखा अंदर का गल्ला भीगा हुआ है, ऊपर का गल्ला सूखा हुआ है, मामला क्या है? उस ताजिर शख्स ने कहा, रात में बारिश हुई थी, गल्ला भीग गया था, मैंने भीगा हुआ गल्ला नीचे रख दिया और सूखा हुआ गल्ला ऊपर रख दिया ताकि कोई आए और गल्ले को देख करके पूरे लाख का सौदा कर ले। हमारे नबी ने फरमाया, सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे करके तिजारत करे वो मेरा उम्मती नहीं है। आज हम कितना धोखा देते हैं। आज हम लोगों के साथ हमारे मामलात क्या हैं मेरे भाइयों? चेहरे पर दाढ़ी रख लेना, पेशानियों पर सजदे के झूमर आ जाना, ये मुसलमान की निशानी नहीं है। मुसलमान जिंदगी के तमाम मामलात में इस्लाम पसंद होता है। हम उस सायादार दरख्त की तरह से है, जहां भी हम रहेंगे लोगों को साया पहुंचाएंगे। अगर लोगों को हमसे तकलीफ होती है, हमने लोगों को धोखा दिया है, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। आज यही वजह है कि मुसलमानों की माशी हालत कम
हैं, लोग हमसे सौदा नहीं करना चाहते हैं, लोग हमसे कारोबार नहीं करना चाहते हैं, लोग हमसे तिजारत नहीं करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा की जिंदगी को मेंटेन करें, रोज़मर्रा की जिंदगी को मेंटेन करें। अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे और नेक लोगों की सिफात बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब उनको खर्च करने की बात आती है तो पूरा लुटा नहीं देते हैं और न ही बखीली करते हैं, बल्कि दरमियान का मामला अपनाते हैं, दरमियान का मामला अपनाते हैं। बहुत सारे लोग बखीली करते हैं और बहुत सारे लोग फजूल खर्ची करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखीली से पनाह मांगी है। बखीली जिसको हम कंजूसी कहते हैं, हम इसको बहुत मामूली समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं करते थे, आपकी दुआओं में ये दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल, ऐ अल्लाह मैं बखीली से तेरी पनाह चाहता हूँ, कंजूसी से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और आपने कभी बखीली नहीं की, आपने कभी कंजूसी नहीं की, आपने हमेशा लोगों को लुटाया। बल्कि कभी कभी ऐसा होता था कि आपके पास एक खुराक खाना है, किसी ने सवाल कर लिया, आपने उसको दे दिया, आप खुद भूखे रह गए, खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे। कितने अच्छे थे मोहम्मद के घराने वाले। मेरे भाइयों, बखीली कंजूसी ये मुसलमानों का काम नहीं है। बखीली से बाहर निकलें, खर्च करें जहां खर्च करना चाहिए। दीन के मामले में हम बखीली करते हैं, हम कंजूसी करते हैं, लेकिन जहां पर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। शादी ब्याह का मामला हो, बहुत सारे मुसलमानों को देखा गया है दीन के मामले में अगर खर्च करना हो तो 10 बार सोचता है कि कितना दें, जेब से निकालने के लिए 10 बार सोचता है, मस्जिद की झोली में डालने के लिए छुट्टे पैसे लौटता है। लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है लाखों रुपए खर्च करता है। किसी ने बड़ी बेहतरीन बात कही है, मुसलमानों की बेबसी, मुसलमानों की कमजोरी, मुसलमानों की कमाईगी अगर देखना हो तो मुसलमानों की मस्जिदों को देखो, मुसलमानों के इमामों को देखो, मुसलमानों के मौजरीन को देखो, मुसलमानों के इदारों को देखो। आज हमारे इदारों का क्या हाल है, आज हमारी मस्जिदों का क्या हाल है, आज इदारों में और मस्जिदों में काम करने वाले उलमा का क्या हाल है, आज उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। लेकिन नहीं, यही कौम जब उलमा को देने की बात आती है तो कंजूस हो जाती है, बखील हो जाती है। लेकिन जब बेटे की शादी होती है तो लाखों रुपए खर्च करता है। खाने पीने की बात छोड़ो, सिर्फ डेकोरेशन में लाखों रुपए खर्च होते हैं। क्या ये बात गलत है? ये गलतियां कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि फजूल खर्चियां न करें, तो कहते हैं खाने पीने में क्या फजूल खर्ची। मैं आपको ये मतलब मसला भी बताते चलो। फजूल खर्ची के 2 तरीके हैं, एक जो है इसराफ और दूसरा जो है तब्ज़ीर। इसराफ किसे कहते हैं? जायज कामों में ज्यादा खर्चा करना। हमारा इतने काम में ये काम हो सकता है, उसके लिए आप अपना स्टेटस हाई करने के लिए, लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आप ज्यादा खर्चा करते हैं। मिसाल के तौर पर दावतों का एहतमाम हुआ, लोगों को बुलाए, 10 किस्म के बजाय 12 किस्म के, 15 किस्म के। एक आदमी ने खाने में 4 आइटम रखा, दूसरा आता कि तो उसने 4 रखा था ना, अब मैं आ सकता हूँ। ये है हमारा कंपटीशन, इसको इसराफ कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, इसराफ न करो। जायज कामों में जरूरत से ज्यादा खर्चा करना क्या है? इसराफ है। और नाजायज चीजों में खर्चा करना क्या है? तब्ज़ीर है। आप फिल्म देख रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, आप किसी हराम काम में खर्चा कर रहे हैं, तो ये तब्ज़ीर है। तो इसराफ से भी मना किया गया है, तब्ज़ीर से भी मना किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान रब का नाशुक्रा है। मेरे भाइयों, ना बखीली करें और ना फजूल खर्ची करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जहां जरूरत हो वहां खर्च करें। इसी तरीके से अगली बात जो हमको बतानी है, नौजवानों की बेराह रवी। मेरे भाइयों, आज नौजवान सुस्त हो गया है, आज नौजवान
जाहिल हो गया है, आज नौजवान दीन से दूर हो गया है, आज नौजवान मायूसी का शिकार हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बहुत सारी चीजों से पनाह मांगते थे, वहां आप कस्ल से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कस्ल, ऐ अल्लाह मैं कस्ल से तेरी पनाह चाहता हूं। कस्ल किसे कहते हैं? कस्ल कहते हैं आदमी आजिज हो जाए, आदमी कुछ करना ना चाहे, आलस जिसको कहते हैं। आज हमारा नौजवान बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सुबह में देखो व्हाट्सएप, शाम में देखो व्हाट्सएप, रात में देखो व्हाट्सएप। बूढ़ा बाप मेहनत कर रहा है, जवान बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ है, बूढ़ी माँ घर का काम करती है, जवान बच्ची चारपाई पर लेटी हुई है। आज हम घर घर का ये माहौल देख रहे हैं। आज हमारे नौजवान किस कदर आलस के शिकार हो गए हैं, किस कदर वो कमजोर हो गए हैं, और ये कहते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों, ये नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। अरे मेरे नौजवानों, तुम ही जमात की आबरू हो। जब तुम बेदार रहोगे, जमात बेदार रहेगी। जब तुम बुज़दिल हो जाओगे, जमात बुज़दिल हो जाएगी। मेरे भाइयों, तारीख उठाकर पढ़ो। हमारे नौजवानों ने वो किरदार अदा किया है जो तारीख के सुनहरे हरूफ में मौजूद है। हमारी ये भारत की सरजमीन जहां पर हम रहते और बसते हैं, इसकी तारीख उठा करके पढ़ो। जब अरबी बेड़े पर राजा दाहिर ने कब्जा कर लिया था, तो यहाँ की एक खातून ने खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ के पास कि आज अरबी बेड़े पर एक हिंदू राजा ने कब्जा कर लिया है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को 500 शहसवारों के साथ भारत की सरजमीन पर भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम जिनकी उम्र उस वक्त 17 या 18 साल की थी। मेरे भाइयों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में आए, दिन भर जिहाद करते थे, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं करते थे। एक साजिश के तहत उनको यहाँ से बुलाया गया। यही मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ से वापस जाने लगे, तो यहाँ की हिंदू औरतों ने मोहम्मद बिन कासिम के पैर पकड़ लिए और कहा, आप हमारे देवता हैं, आपने हमारे मुल्क को अमन इंसाफ से भर दिया था, आज आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं, आज हमारा देवता हमें छोड़ कर जा रहा है। मेरे नौजवानों, तुम क्या हो? मेरे नौजवानों, तुम जमात की आबरू हो। अपनी सलाहियतों को पहचानो, अपने घरों से बाहर निकलो, जमात के लिए अपने आप को वक्फ करो। जमात तुम्हारी तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखती है। ये दाढ़ियां आप सफेद हो गई हैं, अब आप लोगों का काम आया है। जमात के लिए अपने आप को वक्फ करो। अगर जमा हूँ मेरे कौम के जसूर गयूर, कलंदरी मिली कुछ कम सिकंदरी से नहीं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत हमें उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। मेरे भाइयों, अरे नौजवानों, आगे आओ, आलस को छोड़ो, मायूसी के खोल से बाहर निकलो। और इसी तरीके से जहां पर इस्लाह की जरूरत है, खवातीन की बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। आज हमारी खवातीन बेपर्दा होती जा रही हैं। ना उनके घर में पर्दा है और ना बाहर पर्दा है। पर्दे के ताल्लुक से अगर गुफ्तगू की जाए, बहुत सारी बातें होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताता हूँ। आपने फरमाया, कासियातुन आरियात मुमिलातुन माइलात, क़यामत के करीब ऐसी औरतें होंगी, कासियातुन कपड़े पहने होंगी, आरियात फिर भी नंगी होंगी, मुमिलातुन माइलात दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी, खुद भी दूसरों की तरफ माइल होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी रहना आज जमाने के फैशन ने हमें ये बात सिखा दी है। आज कितनी औरतें हैं जो बारीक कपड़े पहनती हैं, नट के कपड़े पहनती हैं, कपड़ा पहनने के बावजूद भी जिस्म बाहर से झलकता है। ये बेपर्दगी है। इसी तरीके से दूसरी शक्ल ये है कि कपड़े इतने चुस्त और टाइट पहनती हैं कि जिस्म के नशीबो फराज जाहिर होते हैं। ये भी बेपर्दगी है। इसी तरीके से कपड़े इतने छोटे पहनती हैं जो जिस्म का अक्सर हिस्सा दिखाई देता है। ये भी बेपर्दगी है। कासियातुन आरियात मुमिलातुन माइलात, कपड़े पहनेंगी फिर भी नंगी रहेंगी, अपनी तरफ लोगों को माइल करेंगी, खुद भी लोगों की तरफ माइल होंगी। आज औरतों की तादाद ऐसी ही बढ़ती जा रही है। मेरी माँ और बहनों, जरूरत के तहत बाहर निकलना जायज है, दुरुस्त है, लेकिन पर्दे के साथ निकलें। अपना काम होने के बाद सीधा घर को आए। इसी तरीके से खवातीन में एक और बड़ी बात जो फैलती जा रही है, शौहरों की नाशुक्री। आज शौहर जो भी गलतियां करता है, या तो अपनी बीवी के लिए करता है या तो अपने बच्चों के लिए करता है।
मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मैंने जो एनालिसिस किया है, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंसान जो भी गलतियां करता है, हराम कमाता है, किसी का माल नाजायज तौर पर ले लेता है, किसी को धोखा देता है, किसके लिए? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर हमारी घर की खवातीन अपने शौहरों से ये कह दें हम मोटा छोटा पहन लेंगे, हम रूखा फीका खा लेंगे, हम 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की खाएंगे, हमें हलाल कमाई चाहिए, हमें पाकीज़ा कमाई चाहिए, आप माश के जिम्मेदार हैं, अगर हराम कमाते हैं तो क़यामत के दिन आपको जवाब देना होगा, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। आज अगर खवातीन अपने शौहरों से कह दें आधा मौसम पाक हो जाएगा। ये है गलतियां मेरे भाइयों। हम वो नहीं है जो मीठी मीठी बातें कहते, हम वो हैं जो मुआशरे के अंदर बुराइयां पाई जाती हैं उन पर हम उनकी निशानदेही करते हैं। मकसद ये होता है कि हम उसकी इस्लाह करें। खवातीन चाहें तो मुआशरे की इस्लाह में अहम रोल अदा कर सकती हैं। एक शौहर अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनतें करता है, लेकिन किसी मौका पर अगर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो खातून कहती है जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इसी तरह मुसीबत में काट रही हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखें। आपने ईदैन के मौका पर मर्दों के साथ औरतों से भी खिताब किया, औरतों को अलग से खिताब किया। आपने फरमाया कि ऐ खवातीन, मैंने देखा कि जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा है। एक खातून खड़ी हुई, कहा हुजूर जहन्नम में हमारी तादाद ज्यादा क्यों है? आपने फरमाया कि तुम नाशुक्री करती हो। खातून ने पूछा क्या अल्लाह की नाशुक्री करती है? कहा नहीं, तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। ये शौहरों की नाशुक्री खवातीन को जहन्नम तक पहुंचा देगी। ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इमाम कायनात का जुमला है कि खवातीन अपने शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। कहा हुजूर इससे बचने का कोई तरीका बताइए। कहा सदका करो। कहा सदका करो। मर्द हजरात तो सदका करते हैं, खवातीन नहीं करती हैं। हजरत बिलाल कहते हैं नबी ने ऐलान किया, मैंने अपनी चादर फैलाई, खवातीन ने अपने कंगन निकाले, कान की बालियां निकाली, गले के हार निकाले, हमारी झोली में डाल दिया, यहाँ तक कि हमारी झोली भर गई। जब कहा जाता है, खवातीन कहते हैं मर्दों के पास है, मर्द करते हैं, सबसे ज्यादा खवातीन के पास कितने माल होते हैं खवातीन के पास, लेकिन नहीं निकालना चाहती। कभी आपकी मस्जिद में कोई हार गिरा है? कभी कोई अंगूठी आई है छोटी मोटी? ये तरक्की का दौर है। आज इंसान के पास कितने पैसे हैं, रखने की जगह नहीं है। हमारे नबी के जमाने में सहाबा, आप फरमा रहे थे, एक सहाबी इंतकाल हो गया, उनके लिए जनाज़ा कफन के लिए कपड़ा भी नहीं मुयस्सर था। चेहरा सर ढकते थे तो पैर खुल जाता था, पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पहले नबी ने फरमाया सर को ढांक दिया जाए, पैर पर घास डाल दिया जाए। सहाबा ने देखा। मेरे भाइयों, सहाबा कहते हैं कि बाद में जब फुतूहात का सिलसिला शुरू हुआ और नेमतों को हमने खाना शुरू किया, हमें डर लगा कि कहीं हमारी कुर्बानियों का बदला अल्लाह ने दुनिया में तो नहीं दिया है। आज हम कितनी नेमतें खा रहे हैं, हम नाशुक्रे होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, नाशुक्रे मत बनो। आखिरी बात, हर शख्स को चाहिए कि दावती ज़हन रखे। ये मैं आया हूँ, अभी चले जाऊँगा। ये उलमा थोड़ी देर तक गुफ्तगू की है, फिर सब चले जाएंगे। हर आदमी की जिम्मेदारी है दावत का काम करना। हर आदमी की जिम्मेदारी है दावत का काम करना। करेंगे इंशाअल्लाह। दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर 1,40,000 सहाबे किराम के सामने खिताब किया और खिताब करने के बाद सहाबा से पूछा, अरे मेरे सहाबा बताओ, क्या मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है? 1,40,000 सहाबा ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया है। प्यारे नबी ने अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाया और कहा, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू भी गवाह है ना, तेरा पैगाम तेरे बंदों तक मैंने पहुंचा दिया है। और उसके बाद आपने फरमाया, फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो यहाँ हाजिर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो नहीं है उन तक मेरी बात पहुंचा दें। वो 1,40,000
सहाबा ने अपने बच्चों को सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। ये सिलसिला चलते चलते मेरे तक पहुंचा है। मेरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सिखाऊं। है ना साहब, यही है ना, हर शख्स की जिम्मेदारी